of A. ठीक है, but today we are going to solve the inverse of a matrix using the elementary operations. Elementary operations that are row operations or column operations. So before starting this question, ठीक है, मैं जो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, let me explain you something. मैं NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਵਰਸ ਕਦੇ ਵੀ रो ऑपरेशंस से कॉलम ऑपरेशंस ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਵਨ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅਟੈਂਪਟਡ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ CBSE ਬੋਰਡ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, even then don't take a chance to solve this question, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਵਨ ਦੈਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੇ। ਸੋ let me start this topic while telling you this, that if you have a chance to skip this question, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, never attempt this question. ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। this is going to, ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੱਚਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਗੀ ਦੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 45 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਬੋਰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਰਡਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਦਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ठीक है, solve the inverse of a matrix using elementary row operations, then we are bounded कि ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ row operations ਹੀ करने हैं, we can't use column operations ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ use ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। so inverse of a matrix comprises of two parts, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ elementary रो ऑपरेशंस ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ रो ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ रो ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਾਈਲ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ 'ਚ रो ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੱਲਾ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੋ ਕਹਿਤਾ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਲਮ ਕਹਿਤਾ ਕਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਲਮਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਆਏਗਾ ਕਾਲਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। बेटा जी रो ऑपरेशन आया था, फर्दर याद रखियो तुसी आला रिजल्ट लेके चलोगे, ठीक है। जे कॉलम ऑपरेशन आया तो तुसी आला रिजल्ट लेके चलोगे, ठीक है। जे तुसी इन्ना विच गलती करती, जे एंदे ते एंदे विच गलती होगी, ठीक है, सम गलत हो जाएगा।
सो मतलब जे तुसी कॉलम ऑपरेशन लेके चल रहे हो तो तुहानू ए मान के चलना पेगा, जे तुसी रो ऑपरेशन लेके चल रहे हो तो तुहानू आ। ठीक है, दिस इज पोस्ट मल्टीप्लाइंग, दिस इज प्री मल्टीप्लाइंग। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन दे विच ए, ठीक है, ए जेड़ा हैगा वा पोस्ट प्री मल्टीप्लाइंग आंदा वा विद द आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ते रो ऑपरेशन दे विच ए पोस्ट मल्टीप्लाइंग दे विच आंदा वा विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आ याद रखने वाला है बस इस विच। पहले नोट, चलो आगे सॉल्व करते हैं। सम देखते हैं, पहला छोटा सम लेने हैं 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, क्वेश्चन है वा फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए using elementary row operation। so they are saying कि elementary row operation लगा के इनका inverse find करो। ठीक है, हुन मेथड नु समझो, शॉर्टकट मेथड कह लो या इजी मेथड कह लो, व्हाटएवर। मैं सॉल्यूशन शुरू करूंगा। सिंस दे आर सेइंग रो ऑपरेशन, तो रिमेंबर वन थिंग, रो ऑपरेशन दे विच की करते हैं ਅਸੀਂ IA यूज करते हैं। रो ऑपरेशन च की यूज करना IA। सो मैं की लिखूंगा A इज इक्वल टू IA। हुन इधर A दी वैल्यू मैं की कर दूंगा, पुट कर दूंगा। ਇੱਥੇ की कर दूंगा, A दी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा। इधर A दी वैल्यू मैं पुट नहीं करूंगा। क्यों मैं नहीं कर रहा? रीजन मैनू इन्ना पता वा A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू की हुंदा वा I। A इंटू A इनवर्स की हुंदा वा I। सो मैं इनू की बना देना वा A इनवर्स बना देना। ठीक है, तो इधरली साइड की बना देनी है, मतलब ए मेरा रिक्वायर्ड आंसर होएगा। दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर। मेरे दिमाग दे विच आ चल रहा वा टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेरे दिमाग दे विच आ चल रहा कि मैं इन्ने स्टेप सॉल्व करा तो की करा, इधरली साइड से आइडेंटिटी, लेफ्ट हैंड साइड से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जावे, राइट हैंड साइड से जिथे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ उत्ते एक मैट्रिक्स निकल के आवे। ठीक है, वो मैट्रिक्स नु ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? A इनवर्स ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। वेयर एज A राइट हैंड साइड से A दी कोई वैल्यू ही नहीं पुट करूंगा। ठीक है, A विल रिमेन सेम एज A इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, बट राइट हैंड साइड ਦੇ जिथे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ उत्ते एक मैट्रिक्स लेके आऊंगा यूजिंग रो ऑपरेशंस, ਤੇ ਉਹ मैट्रिक्स ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? A ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। वेयर एज लेफ्ट हैंड साइड ਦੇ ਵਿੱਚ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेके आऊंगा रो ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इन आवर माइंड। ਅਸੀਂ while solving this question ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ठीक है, सो मैं की कर रहा फर्दर हुन मेरे को ना की आ रहा, मैं किदा करदा, मतलब मेरे दिमाग दे विच जे पेपर च आंदा वा मैं हुन बिल्कुल स्टूडेंट दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल सोच के दस रहा यार। ठीक है, कि एक बच्चे नू की करना चाहिए कि चलो मजबूरी है कि उन्होंने सॉल्व करना पै ही गया जे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल दे विच, तां उनके दिमाग दे विच की चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, असीं उनके अकॉर्डिंगली देख के चलते हैं। ठीक है, यूजिंग दैट थिंग इन माइंड ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਆਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਆਈਡੈਂटिटी ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹੁਣ ਆਈਡੈਂटिटी ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1 0 0 1 ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ रो ऑपरेशंस माइनस प्लस। तो मेरे दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ 10th क्लास ਦਾ एलिमिनेशन मेथड ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ।
10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ਿੰਗ दैट ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 ठीक है क्यों मैं इस पोजीशन के उत्ते की लेके आना है 0 तो की होएगा 1 3 इत्थे की हो जाएगा 0 ठीक है इत्थे की 6 इत्थे की हो जाएगा 1 हुन जो ऑपरेशन तुसी लेफ्ट हैंड साइड ते लगाया जो ऑपरेशन तुसी इत्थे लगाया ठीक है राइट हैंड साइड के उत्ते भी तुसी सेम ऑपरेशन लगा के चलोगे 1 0 मतलब इत्थे की हो जाएगा 0 माइनस 2 एक ही हो जाएगा 1 ए एज इट इज रहेगा क्लियर है इतने तक डाउट है तो पूछो इतने है कोई डाउट चलो बढ़ते आगे जे इतने तक क्लियर है देन फर्दर मेरे दिमाग में फिर एक चीज चल रही है ठीक है इधर आप भी कर रहे हो सारे ठीक है हुन फर्दर जे इत्थे 0 आ गया इत्थे भी मैनू की चाहिए 0 चाहिए फॉर दैट मैं फिर की कीता R1 दे उत्ते ऑपरेशन लगाया सो एवरी टाइम रिमेंबर वन थिंग इत्थे पहला 0 लेके आओ जिन्ने भी क्वेश्चंस होणगे सारे इदां ही करने ठीक है ए मैं बड़ा इजी क्वेश्चन लिता स्टार्टिंग दे विच R1 दे उत्ते ऑपरेशन लगाया ठीक है -3R2 कीता तो की निकल के आ रहा है दिस इज गोइंग टू बी 1 दिस इज गोइंग टू बी 0 0 1 सो रिमेंबर मैं की लगा रहा है 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड लगा रहा है यही सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं ठीक है हुन इत्थे की हो जाएगा R1 प्लस 6 आएगा इत्थे की हो जाएगा 0 प्लस 3 आएगा इत्थे की हो जाएगा -2 इत्थे 1 सो ओवरऑल रिजल्ट की निकल के आ रहा है मैं इधर ही साइड पे लिख रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट इधर आ रहा है दिस इज माय आंसर ठीक है हुन देयरफॉर ए इनवर्स किंदे इक्वल आ जाएगा 7 -2 3 1 आ चीज दे इक्वल आ जाएगा एक मिनट चेक कर ली हाँ जी -3 आए -3 आए ठीक है क्लियर है बेटा जे उन्हें रो ऑपरेशन बोल दिता तो मैंने चकना ही हुई ऑपरेशन बना ठीक है तुसी कह रहे I इज इक्वल टू हाँ जी बेटा वो सिर्फ तेन एक्सप्लेन करने वास्ते है वो तुसी लास्ट ते मेंशन कर सकते हो इत्थे मैं ऑपरेशन इत्थे मैं लिख सकदा ठीक है इत्थे लास्ट ते आंसर आएगा I इज इक्वल टू किंदे इक्वल हुंदा A इनवर्स इनटू A देयरफॉर करके लिखूंगा इत्थे लिखूंगा ब्रैकेट दे विच रीजन जे लिखना भी वो सिर्फ स्टार्टिंग दे विच इन्हां नूं कांसेप्ट समझाउण वास्ते सीगा कि मैं की सोच लेके काम कर रहा हूं ठीक है चलो एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं इहदे विच ठीक है थोड़ा जिहा लेंथी हुन दिस वाज लास्ट क्वेश्चन वाज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स ता करके थोड़ा इजी लग रहा है हुन आपां कर रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स दिस इज द क्वेश्चन
अगेन रो ऑपरेशंस लगा के करना। मुझे रो ऑपरेशंस लगा के करना है तो मैंने इन्ना पता वा तो की होएगा, A इज इक्वल टू आई ए चक्का में, ठीक है, इधरली साइड पे A लगा देता। दिस इज गोइंग टू बी द कॉम्प्लेक्स वन, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आ चीज आ रही है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A एंड I, बिल्कुल आ निकल गया। ठीक है, हुन मेरे दिमाग च की चल रहा है, इधरली साइड ते लेफ्ट हैंड साइड ते की बनावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर दैट मैं की देखिया, इथे 3 है, इथे भी 3 है, ठीक है। हुन आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे विच मैनूं 0 चाहिदा हुंदा वा इथे, सो मैं पहला ही 0 बनाने दी सोचनी शुरू करती, ठीक है। ऑलरेडी मेरे दिमाग दे विच की चल रहा है, 0 चल रहा है, ठीक है। सो फॉर दैट मैं ऑपरेशन लगाया, पहला ऑपरेशन R3 थे, क्या हो जाएगा R3 माइनस R1, ठीक है। तो ऑपरेशन लगा के मेरे को की निकल के आ रहा है, ठीक है। ऑपरेशन लगा के मेरे को निकल के आएगा 3 माइनस 1 माइनस 2 2 0 माइनस 1 इथे 0। हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दैट इज माइनस 4, इथे क्या हो जाएगा 2। जो ऑपरेशन असं लेफ्ट हैंड साइड ते लगाया, इथे राइट हैंड साइड दे उत्ते भी आई दे विच सेम ऑपरेशन चलेगा, 1 0 0 0 1 0, तो क्या हो जाएगा, हम सबट्रैक्शन हो रही है, माइनस 1 0 1, ठीक है। स्टेप मैच करो, ठीक है। चलो देन अगे आगे बढ़ रहे, हुन की कीता सी, हुन मैं फर्दर फिर सोचना शुरू किया कि मैं इधरली साइड ते आइडेंटिटी मैट्रिक्स किदां लेके आऊं, ठीक है। हुन आइडेंटिटी मैट्रिक्स वास्ते जिथे मेरे को इधर 3 पिया है ना, मैंने इत्थे की चाहिदा 1, इत्थे की चाहिदा 1, तो मैं की देखिया, मैं ऑपरेशन R1 दे उत्ते लाता, दिस टाइम R1 माइनस R2 किता। मुझे मैं R1 माइनस R2 कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को की ऑपरेशन आ रहा है, आंसर की निकल के आएगा वो देख दें, ठीक है। मैं इधर ही साइड रब कर रहे हैं, बाद जो इत्थों ही चक लांगे। स्टेप्स नोट करी जाओ चंगी तरह। चलो बाद जब आप कर लेंगे बाकी। की आ रहा है हुन इत्थे की हो जाएगा 1, जो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा इत्थे क्या आ रहा है 1, इत्थे माइनस 1 नहीं, इत्थे माइनस 1 नहीं, इत्थे 2 0 माइनस 1 0 माइनस 4 2, ठीक है। सिमिलरली फिर मैं वापस राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए हो जाएगा 1 माइनस 1 0। बड़े ध्यान नाल तुम खुद सोच रहे हो, बड़े ध्यान नाल करना पैंदा वा, गलती ना हो जाए कोई। जे कोई डाउट है तो पूछो।
ठीक है। अगेन हुन अगेन मैंने की सोचना शुरू किया दिस टाइम, हुन इत्थे मैं 0 बनाने की सोच रहा, इत्थे 1 आवे, इत्थे फिर 0 आवे, तो बहुत इजीली बन रहा मेरे को दिस टाइम। तो मैं ऑपरेशन लगाया, फिर R2 थे क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 ना 2 लगा लेने, हाँ ठीक है। तो की होएगा 1 माइनस 1 1, तो इतने क्या हो जाएगा, हम ऑपरेशन है 0, इतने क्या हो जाएगा 2, इतने क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1, इतने क्या हो जाएगा 1, इतने एज इट इज। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे भी सेम ऑपरेशन है, 1 माइनस 1 0, ठीक है। हुन इतने हो जाएगा -2 -2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 0, ठीक है। -1 0 1, चेक कर लो कोई गलती था नहीं। कितना लेफ्ट हैंड साइड च फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की आना वा माइनस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देन इतने तक क्लियर हो गया। हुन वापस फिर असी पदर अगे बढ़ने सोच रहे हैं। हुन मैं वापस इनकी हेल्प दे नाल इधर जीरोस बनाने की सोच रहा या इतने जीरोस बनाने की सोच रहा। हुन जे तो कुछ कॉमन निकल सकता, कॉमन लेके करना चाहते हो कॉमन लेके कर लो, वो तुहाडी विश है कि जे रो दे विचों कुछ कॉमन निकल रहा है तो रो दे विच कुछ कॉमन लेके कर लो, ठीक है। वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, ठीक है। हुन टेकिंग मैं तो क्या लिखना है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, ठीक है। मुझे 2 कॉमन लिखता है R3 जो इधर भी आ गया, 1 माइनस 1 माइनस 1 0 2 1 0 -2 1, बेटा जी 2 इधरों भी कॉमन निकलेगा, फिर ऑपरेशन सेम रहेगा। क्या हो जाएगा -1/2, ठीक है। 0 ही रहेगा, 1/2 हो जाएगा। आ गया। हुन की देख रहे हैं, आ 2 दी 2 दे नाल कटिंग हो जानी, मैं लिखना ही नहीं है। नोट कर लो, बड़े ध्यान नाल देखो। ठीक है। हुन मैं इधरली साइड सारे रब कर रहा, नोट कर लो एक बारी। रब कर लेने। सो यू आर लुकिंग के हाँ यार किथे ना किथे जिहड़ा हैगा वा सोचना पैंदा इहदे च। चलो एलिमिनेशन मैथड लगा रहे हैं असीं इहदे च, ठीक है। इवन देन एलिमिनेशन मैथड जिहड़ा हैगा वा लगा भी रहे हैं जे इहदे विच आपां यूजिंग द, पर सानू हर स्टैप दे विच बड़ा माइनस प्लस का बड़ा ध्यान रखना पैंदा वा। यूजली माइनस प्लस की गलती हो जाती है, तुसीं देख सकते हो मैं भी सॉल्व कर रहा तो मेरे को माइनस प्लस की किते ना किते गलती हो जाती, तुसीं मेरी करैक्शन कर रहे हो। हुण एग्जामिनेशन हॉल दे विच बच्चा इन्ना कंफ्यूज होंदा वा, इन्ना डरिया होंदा वा, ठीक है, कि ओए माइनस प्लस की गलती जिहड़ा हैगा लभ ही नहीं पांदा। चलो
ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਸ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ R3 ਤੇ R3 plus R2 ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ 1 minus 1 minus 1 0 0 2 ਇੱਥੇ 0 1 ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2, ठीक है, इक्वल टू अगेन फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, कोई ऑपरेशन ही नहीं लगा रहे अंदर, ठीक है। सेकंड रो विल रिमेन सेम, कोई ऑपरेशन ही नहीं लगा रहे। हुण इत्थे एडिशन चलेगी, ठीक है, ठीक है। मैं इत्थे साइड ते कर रहा, आ देखो इन्हां दी थर्ड ऑपरेशन है, मैं सीधा जो रिजल्ट निकल के आएगा मैं वो लिख रहा इत्थे, ते की आएगा -5/2, इत्थे की हो जाएगा -5/2। सिमिलरली 3 ऐड होया इहदे च, सीधा ही 3, सिमिलरली 1/2। सर वीडियो नहीं आ रही, एक हुण क्लियर है, ठीक है जी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देना है स्टेप, ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਹ 2 -2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ 0 ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ठीक है। फॉर दैट ਅਸੀਂ ਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ठीक है, तो मेरे को आ नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है। क्लियर है तक? अगेन हुण मैनू देख के पता चल रहा है, देखो लेंथ कितना है ते माइनस प्लस की गलती हो ही जा रही है विचों कदी कदी, तो बड़ा ध्यान रखना पैंदा, बोरिंग भी निकल के आंदा है, बार बार सोचना पैंदा। अगेन इत्थों दी मैं 2 कॉमन ले सकदा, R3 जो 2 कॉमन लेता, जो 2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1 -1 -1 0 2 1 0 0 1 -1 -1 0 -2 3 0, क्या हो गया -5/4 3/2 1/4। दिस इज हुण मेरी शेप मैं कर के रहा, सिर्फ तो सिर्फ एलिमिनेशन मैथड मेरे दिमाग च चली जा रहा है, और कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग च, कोई रूल इदा नहीं चल रहा, लेकिन मेरे दिमाग दे विच 10th क्लास दे विच जिद्दां असीं एलिमिनेशन मैथड लगाने वही चल रहा वा, ते एलिमिनेशन मैथड दे विच भी मेरे दिमाग च आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाल नाल चल रहा वा कि मैं राइट हैंड साइड नूं आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड साइड नूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, ठीक है। इत्थे तक नोट कर लिया कि मैं आगे बढ़ा, ठीक है। सो दीज सम्स रिक्वायर्ड लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तेरा माइंड बहुत शार्प होना चाहिए, तुसी डरे ना होवो, उदों यह सम जिहड़ा हैगा बड़ा ईजिली सॉल्व होंदा वा, ठीक है कुछ नहीं है सम दे विच, बट द थिंग इज माइनस प्लस दी गलतियां, व्हेन यू आर इन अ फेयर माइनस प्लस दी गलतियां फाइंड आउट करनी है जे अक्कर कर गईयां, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई मैं एग्जाम दे विच यह सम जिहड़ी हैगी है अवॉइड करवा के चलदा बच्चे नूं कि किते ना किते जे इहदी चॉइस डिटरमिनेंट दे नाल निकल के आंदी है किते ना किते, ठीक है। तो डिटरमिनेंट दा सम बच्चा काफी हद तक जिहड़ा हैगा सॉल्व कर लैंदा, उहदे विच भी जिहड़ा हैगा माइनस प्लस दी गलती लभना औखा हैगा वा, बट मैं कंपैरेटिवली ओहदे सम नूं ज्यादा बेटर मान के चलदा वां एज कंपेयर टू दिस सम्स। एक तो लेंथ ही बहुत निकल के आंदे, इहदी लेंथ कंट्रोल च नहीं निकल के आएगी बच्चे दे जे गलती हो गई एक स्टेप दे विच। सो मूविंग फर्दर जे मैं इहनूं ध्यान नाल देखा इत्थे मेरे कोल 0 बन सकदा हुण, कितना बनेगा R2 दे उत्ते ऑपरेशन लगाया -R3, तो की निकल के आ रहा है 1 -1 -1
0 2 0 0 0 1 ਸੌਖਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਸਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। -4, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, -2 एक मिनट, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। हम एना दे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ठीक है, क्या आएगा -8 + 5 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज -3/4। सो 1 - 1 - 1 क्या हो जाएगा -3/4। सिमिलरली 3 दे विचों -3/2 माइनस कितना 6 - 3 दैट इज 3/2। इतने क्या आएगा 3/2। इतने क्या हो जाएगा -1/4 -5/4 3/2 1/4। मुश्किल है बट हो जाता सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगेन ਹੁਣ मैं फिर की देख रहे हैं, इनके विचों 2 कॉमन निकल रहे, ठीक है, जो 2 कॉमन निकले ऑलमोस्ट मेरा सम सॉल्व होया। फिर टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 कितना तो क्या हो जाएगा 1 - 1 - 1 0 1 0 0 0 1। मैं इधरों भी लिखता 1 - 1 - 1 एक क्या हो जाएगा -3/8 3/4 -1/8 -5/4 3/2 1/4 इनटू नाल ए है, ए चल रहा। ठीक है, देन अगे बढ़ रहे हैं। बेटा इनकी प्रैक्टिस जरूर करियो। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਮਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਸੇਮ। ਆਨਸਰ ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ यूनिक, रिमेंबर वन थिंग। ठीक है, समटाइम्स ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। चलो हूँ बस लगभग खत्म होने वाला सम। ठीक है, हूँ बचिया कि हूँ बचिया कि सिर्फ इतने मैंने जीरोस चाहिए तो की किया मैं वापस R1 के उत्ते ऑपरेशन लगाया R1 + R2 + R3 तो की हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ए मेरा की हो गया। हूँ दिस इज द लास्ट स्टेप। ठीक है, हूँ राइट हैंड साइड नु सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड नु सॉल्व करके जो निकल के आ रहा है वो मेरा इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी माय इनवर्स। हूँ राइट हैंड साइड बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, बड़े ध्यान दे नाल देखना। ठीक है, हूँ राइट हैंड साइड तुसी खुद सॉल्व करोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर। ठीक है, राइट हैंड साइड अगे फर्दर तुसी खुद सॉल्व करो घर बैठ के तो की निकल के आएगा। -5/8 -3/8 -5/4। ठीक है, 5/4 3/4 3/2। देखो सेकंड ते थर्ड रो साडी ऑलरेडी आई हुई है तो मैच कर रही है। ठीक है, 1/8 -1/8 1/4। सो आ की आ जाएगा साडा ए इनवर्स।
So this is our required answer. This is our required answer. So your homework is you have to do this question while using column operations. सिर्फ column operations ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ sum solve ਕਰਨਾ.